So students, chapter number 3 is your metals and non-metals. ठीक है जी। सो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਕੈਮੀਕਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂਗੇ ਮੈਟਲਸ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਨੋਨ ਮੈਟਲਸ ਦੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਮੈਟਲਸ ਦੀ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਆਫ ਮੈਟਲਸ। ਓਕੇ, ਫਸਟ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸਟੇਟ। all metals are solid at room temperature. For example, sodium, aluminium, potassium, magnesium, all these are metals, but there is there are some exceptions. Mercury and gallium, they are liquid at room temperature. Okay, next is luster. Luster means shining surface. All metals have shining surface called luster. ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਫਰੈਸ਼ਲੀ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰੀਦਾ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਾਈਨਿੰਗ ਲਸਟ ਹੁੰਦਾ, ਸ਼ਾਈਨ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰਫੇਸ। ਓਕੇ, ਦੇ ਹੈਵ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਆਫ ਰਿਫਲੈਕਟਿੰਗ ਲਾਈਟ ਫਰੋਮ ਦੇਅਰ ਸਰਫੇਸ ਐਂਡ ਦੇ ਕੈਨ ਬੀ ਪੋਲਿਸ਼ਡ। ਫॉर एग्जाम्पल गोल्ड, सिल्वर, कॉपर show this property. Next is malleability. Malleability means metal can be beaten into thin sheets. This property is called malleability. Due to this property, metals can be rolled into sheets. For example, ਤੁਸੀਂ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਦੀ ਸ਼ੀਟਸ ਦੇਖੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਾਪਰ ਦੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿੰਕ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਲਈਦਾ, ਠੀਕ ਆ, ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਡਕਟਿਲਿਟੀ, ਮੈਟਲਸ ਕੈਨ ਬੀ ਡਰਾਨ ਇਨਟੂ ਵਾਇਰਸ। ਡਕਟਿਲਿਟੀ ਮੀਨਸ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਵਾਇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰਾਨ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਮੈਟਲਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਰਾਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਵਾਇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਡਕਟਿਲਿਟੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। फॉर एग्जाम्पल जे 100 ग्राम की अपने को सिल्वर आ, उस तो कितनी लंबी ही वायर बना सकते हैं, 200 मीटर लॉन्ग वायर। ओके, नैक्सट इज़ हार्डनैस। मैटल्स आर जनरली हार्ड, मतलब बड़े हार्ड होंगे मैटल। तुहानूं पता आयरन हो गया, अलमीनीयम हो गया, मतलब नहीं ईजली ही कट नहीं सकते इन्हों, ठीक है, हार्ड होंगे मैटल। बट एक्सैप्शनस है कुछ। सोडियम एंड पोटाशियम आर सॉफ्ट। सोडियम तो पोटाशियम इन्ने सॉफ्ट होंगे ने कि उन्होंने आप नाइफ के नाल कट कर सकते हैं। नैक्सट इज़ साउंड। मैटल्स प्रोड्यूस साउंड, सो मैटल्स आर कॉल्ड सोनरस। सोनरस उन्होंने कहने आप जो साउंड प्रोड्यूस करते हैं, जो स्ट्राइक करिए इन्होंने। सो साउंड ऑफ मैटल इज़ नोन एज मैटेलिक साउंड। दिस इज़ द कॉज दैट मैटल वायर्स आर यूज इन मेकिंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। यही प्रॉपर्टी को यूज़ करके ही म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बनाने हैं। नैक्सट इज़ कंडक्शन। Generally, metals are a good conductor of heat and electricity because they have free electrons, ठीक है। फ्री इलेक्ट्रॉन इलैक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर से कर चुके हैं। जिन्हों को फ्री इलेक्ट्रॉन, जिन्हें मैटल्स को फ्री इलेक्ट्रॉन दे, इसे करके दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलैक्ट्रिसिटी एंड हीट। बट कुछ एक्सैप्शनस है ने, लैड एंड बिस्मथ, ये पूरे कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलैक्ट्रिसिटी है, ठीक है जी। नैक्सट इज़ density. Metals mostly metals generally have high density, they are heavy, but exception is there. Lithium has low density. Okay, iridium, osmium have the highest densities. Okay, so exception is ये है, lithium की density घट है, ठीक है वैसे, क्योंकि बट जनरली मेटल्स हैव हाई डेंसिटी। नेक्स्ट इज़ मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेटल्स यूजली हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। फॉर एग्जांपल आयरन, कोबाल्ट, निकल हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। टंगस्टन हैज़ द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, बट देयर आर सम एक्सेप्शंस। मोस्ट ऑफ द अल्कली metals they have low melting and boiling point. नैक्सट इज स्ट्रैंथ। तुहानूं पता मैटल की स्ट्रैंथ काफ़ी ज़्यादा होंदी है, ठीक है। इस करके असीं जिहड़े बिल्डिंग के स्ट्रक्चर्स आ उहदे विच मैटल्स दी रॉड्स पाउने हैं, ठीक है। नैक्सट इज कलर। मोस्ट ऑफ द मैटल्स आर ग्रीन कलर, बट गोल्ड एंड कॉपर आर एक्सैप्शनस, क्योंकि गोल्ड का कलर तुहानूं पता किहड़ा हुंदा, जैलो हुंदा, जैलो जो टाइप हुंदा, ठीक है। सो नैक्सट इज़
ਨੈਕਸਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਪੇਜ ਨੰਬਰ 40 ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਗਿਵ ਐਨ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਫ ਮੈਟਲ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਲਿਕੁਇਡ ਐਟ ਰੂਮ ਟੈਂਪਰੇਚਰ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਸਕਦੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ। ਕੈਨ ਬੀ ਈਜ਼ਲੀ ਕੱਟ ਵਿਦ ਨਾਈਫ, ਜਿਹਨੂੰ ਈਜ਼ਲੀ ਕੱਟ ਸਕਦੇ। ਇਜ਼ ਦ ਬੈਸਟ ਕੰਡਕਟਰ ਆਫ ਹੀਟ, ਇਜ਼ ਅ ਪੂਅਰ ਕੰਡਕਟਰ ਆਫ ਹੀਟ। ਠੀਕ ਹੈ। ਵਾਟ ਐਕਸਪਲੇਨ ਦ ਮੀਨਿੰਗ ਆਫ ਮੈਲੇਬਲ ਐਂਡ ਡਕਟਾਈਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕੀ ਮੀਨਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ reaction with oxygen. Most of the metal form respective metal oxide with when react with oxygen। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਮੈਟਲ ਪਲੱਸ ਆਕਸੀਜਨ ਕੀ ਆਏਗਾ, ਮੈਟਲ ਆਕਸਾਈਡ ਆਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਬੇਸਿਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਐ ਅਸੀਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਸਟ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਆਫ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਮੈਟਲ ਵਿਦ ਆਕਸੀਜਨ, ਜਦੋਂ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਆਕਸੀਜਨ ਰਿਐਕਟ ਕਰੇਗਾ ਕੀ ਬਣ ਕੇ ਆਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਆਕਸਾਈਡ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਆਫ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਮੈਟਲ ਵਿਦ ਆਕਸੀਜਨ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਕਿ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਡਜ਼ ਨਾਟ ਰਿਐਕਟ ਵਿਦ ਆਕਸੀਜਨ ਐਟ ਰੂਮ ਟੈਂਪਰੇਚਰ, ਬਟ ਇਟ ਗਿਵਸ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਆਕਸਾਈਡ ਵੈਨ ਬੌਂਟ ਇਨ ਏਅਰ। ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਏਗੀ, ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਆਕਸੀਜਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਕੈਮੀਕਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦਾ। ਦੇਖੋ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਵੈਲੈਂਸੀ 3, ਆਕਸੀਜਨ ਵੈਲੈਂਸੀ 2, ਦੇਖੋ ਕ੍ਰੋਸ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, Al2O3। ਠੀਕ ਸੋ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਬੈਲੈਂਸਿੰਗ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ पोटाशियम, जो पोटाशियम ऑक्सीजन रिएक्ट करके बन गया, क्योंकि पोटाशियम की वैलेंसी कितनी होगी 1, ऑक्सीजन की 2, कितनी आ गई K2O। ठीक है। सोडियम प्लस ऑक्सीजन ये क्या आएगा, सोडियम वैलेंसी 1, ऑक्सीजन की 2, कितनी आ जाएगी Na2O। ठीक है जी। नेक्स्ट रिएक्शन ऑफ सोडियम विद ऑक्सीजन तुम कर लोगे, आयरन विद ऑक्सीजन, कॉपर विद ऑक्सीजन, जिंक विद ऑक्सीजन। ठीक है। कुछ रूम टैंपरेचर तो करेंगे, कोई रूम टैंपरेचर उपर रिएक्ट ऑक्सीजन के नाल नहीं करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट इज रिएक्शन ऑफ मैटल ऑक्साइड विद डिल्यूट एसिड। तुहानूं पता जो मैटल डिल्यूट एसिड नाल रिएक्ट करता की बन के आउंदा अपने को, मैटल सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। ठीक है। फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है, रिएक्शन ऑफ एलुमीनियम विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एलुमीनियम क्लोराइड अपने को फॉर्म हो जाता, एलुमीनियम क्लोराइड तो हाइड्रोजन गैस। देखो एलुमीनियम HCl एसिड इन्हें रिएक्ट करके की बनेगा AlCl3, क्योंकि देखो एलुमीनियम Cl 1C1 3 आ गया AlCl3। नेक्स्ट रिएक्शन ऑफ जिंक विद dilute sulfuric acid। When sulfate and hydrogen gas are formed, zinc react with dilute sulfuric acid। This method is used in laboratory to produce hydrogen gas। तुसीं ना पहला जनरल इक्वेशन याद रखनी है। ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन ऑफ सोडियम मेटल विद HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है। की आ जाएगा बन गया NaCl सॉल्ट आ जाएगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी ना। नेक्स्ट पोटाशियम सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट करके बनाएंगे पोटाशियम सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। नेक्स्ट मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड की आ जाएगा MgCl2 प्लस H2, पता ना Mg वैलेंसी 2, क्लोरीन 1,
कितनी आ जाएगी MgCl2। ठीक स्टूडेंट्स। नेक्स्ट इज स्टूडेंट्स रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर। ओके, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर की होएगा जोड़ा मैटल है जो वाटर ने रिएक्ट करेगा की बनाएगा दिस इज जनरल इक्वेशन मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। ओके, मेटल हाइड्रोजन प्लस मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। देखो मेटल है सोडियम प्लस H2O क्या आएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2O। देखो जो सोडियम है ना एक किहड़े वाटर नाल रिएक्ट कर जाता है कोल्ड वाटर के नाल भी रिएक्ट कर जाता ईजिली रिएक्ट कर जाता कोल्ड वाटर के नाल। बट तुसीं अगे नैक्सट केसिस कुछ करोगे उहदे विच कोल्ड वाटर के नाल रिएक्ट नहीं करते तुहाडे मैटल्स। ठीक है, सो आ देखो नैक्सट रिएक्शन ऑफ एलूमीनियम मैटल विद वाटर। ਹੁਣ ਇਹ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕੋਲਡ ਵਾਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਸਲੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਮੈਟਲ ਵਿਦ ਕੋਲਡ ਵਾਟਰ ਇਜ਼ ਟੂ ਸਲੋ ਟੂ ਕਮ ਇਨਟੂ ਨੋਟਿਸ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਸਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰਿਐਕਟ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਦਾ then aluminium oxide and hydrogen gas is formed। ठीक है, next is reaction of zinc metal with water। ਜਦੋਂ जिंक ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮੈਟਲ जिंक ਮੈਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੀਮ ਪਾਸ ਕਰਵਾਈ ਦੀ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ जिंक ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। सेम इज विद द iron oxide and hydrogen gas are formed by passing steam over iron metals। मैं तुहानूं दस दांगा एक टेबल हैगा वा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਦਾਂਗਾ कि ਜਿਹੜੇ कोल्ड वाटर ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰਨਗੇ ਜਿਹੜੇ नहीं ਕਰਨਗੇ ਜਿਹੜੇ स्टीम ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰਨਗੇ। ठीक है, नैक्सट इज पोटाशियम। पोटाशियम भी ईजिली कोल्ड वाटर के नाल रिएक्ट कर जाता किहड़े वाटर नाल कोल्ड वाटर। ओके, सो पोटाशियम प्लस कोल्ड वाटर इज इक्वल टू पोटाशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस with formed with along with a lot of heat बहुत सारी हीट रिलीज होती है जो सोडियम तो पोटाशियम दोनों वाटर ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦੇ ਆ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज रिलीज्ड। ओके, नेक्स्ट इज मैग्नीशियम प्लस वाटर की बन के आएगा अपना मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है जी, ये तो है जो कोल्ड वाटर जो आप स्टीम रिलीज के स्टीम पास करवाने फिर की अपने को मैग्नीशियम प्लस वाटर ये स्टीम है गिव राइज टू मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। हम स्टूडेंट मैं तुम्हें एक टेबल करवा लगा वो टेबल तो आ जो टेबल है क्लैरिटी हो जाएगी ये। ठीक है, देखो रिएक्शन विद एयर मीनस रिएक्शन विद ऑक्सीजन। ठीक है, रिएक्शन विद वाटर रिएक्शन विद एसिड। ध्यान नाल देखो जिहड़ा पोटाशियम सोडियम ते कैल्शियम ये कोल्ड वाटर के नाल ईजिली रिएक्ट कर जाते हैं किहड़े वाटर नाल कोल्ड वाटर। ठीक है, बट जिहड़ा है मैग्नीशियम एलूमीनियम जिंक ते आयरन ये कोल्ड वाटर नाल रिएक्ट नहीं करते कि रिएक्ट करते हैं स्टीम के नाल टू फॉर्म हाइड्रोजन एंड मैटल ऑक्साइड। ठीक है, यह कोल्ड वाटर नाल की बनाते हैं मैटल हाइड्रोक्साइड बनाते हैं तो मैग्नीशियम अलूमीनियम जिंक ते आयरन की फॉर्म करते हैं मैटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। बट जो अपने को है लैड कॉपर मरकरी सिल्वर गोल्ड ये वाटर के नाल रिएक्ट नहीं करते। ठीक है जी, इस तो इलावा ऑक्साइड किवें बनाते हैं पोटाशियम तो सोडियम ईजिली रिएक्ट कर जाते हैं ऑक्सीजन के नाल। ठीक है, स्लो कि रिएक्ट करते हैं लैड कॉपर मरकरी
ਸਲੋਲੀ ਰਿਐਕਟ ਕਰਕੇ ਕੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਟਲ ਆਕਸਾਈਡ। ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲਵਰ ਅਤੇ ਗੋਲਡ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ 에ਅਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਆ, ਆਕਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਜੀ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ, ਸੋਡੀਅਮ, ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ, ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ, ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ, ਜ਼ਿੰਕ ਅਤੇ ਆਇਰਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟਰੋਂਗ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵਿਦ ਡਿਲਿਊਟਡ ਐਸਿਡ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਆ, ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਲੈਡ ਹੈਗਾ, ਕਾਪਰ, ਜ਼ਿੰਕ, ਮਰਕਰੀ, ਦੇ ਰਿਐਕਟ ਵਿਦ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਟਡ ਐਸਿਡ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੋਲਡ ਆ ਅਤੇ ਸਿਲਵਰ ਆ, ਸਿਲਵਰ ਗੋਲਡ, ਇਹ ਐਸਿਡ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਟੇਬਲ ਨੂੰ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਬਹੁਤ ਹੈਲਪਫੁਲ ਰਹੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਆਪਾਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ।